السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مناسب تال میل کو یقینی بنائیں اور صدر جمہوریہ ہند درپدی مرمو کے دورے حیدرآباد کے سلسلے میں مناسب طریقے سے وسیع انتظامات کریں۔ سی ایس نے مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی اور صدر جمہوریہ ہند کے دورے کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صدر اس مہینے کی 18 تاریخ کو شہر کے سالانہ دورے کے حصے کے طور پر حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ وہ 5 دن حیدرآباد میں رہیں گے اور اس مہینے کی 23 تاریخ کو روانہ ہوں گی۔ محکمہ پولیس سے کہا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی، ٹریفک اور بندوبست کے انتظامات کریں۔ BRS MLC کلوا کنٹلا کویتا نے ریاستی سڑکوں، عمارتوں و سنیماٹوگرافی کے وزیر کومت ریڈی وینکٹ ریڈی سے ملاقات کی، جو بیماری کی وجہ سے یشودا اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے وینکٹ ریڈی کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ MLC کویتا نے وزیر کی جلد صحت یابی کی خواہش کی۔ جلسہ تحفظ ختم نبوت و جشن شیخ الاسلام امام محمد انور اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ علیہ بروز پیر بتاریخ 11 دسمبر 2023 بوقت بعد نماز مغرب 11 بجے شب اختتام پذیر ہوا۔ بمقام بیت المال فنکشن ہال گچی بولی یادگار۔ اس جلسے کی صدارت محترم المقام محمد لائق حسین بدل صدر تنظیم المسلمین و بیت المال یادگیر نے فرمائی اور علماء و مشائقین کرام رونق اسٹیج رہے۔ جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ بعد ازاں حضرت مولانا سید عزیز اللہ قادری قبلہ سابق شیخ المعقولات جامع نظامیہ نے خطاب فرمایا۔ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ فتنہ قادیانیت ایک مسئلہ، اس سے بچنے کے لیے خدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو کوئی آپ کے نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام امام محمد انور اللہ فاروقی نے اپنی کتاب افادیت الافہام میں تحریر فرمائی اور مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا سید احمد غوری استاد جامع نظامیہ نے انور اللہ فاروقی کے اہل دکن پر احسانات کا ذکر فرمایا۔ جلسے کا اختتام صلاۃ السلام پر ہوا۔ خدموں میں رہوں، حکم ہو رہا ہے چلے جاؤ، تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا پریشان مت ہونا، تم کو حبیب کے بارگاہ سے جدا ہونے کا غم ہو رہا ہے، لیکن تم اس سرزمین سے تو دور ہو رہے ہو، اس نبی کی ذات سے دور نہیں ہوگے، جہاں تم ہے مصطفیٰ کی نظر تم پر وہاں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اس خوشخبری کو سن کر آ کے مدرسہ قائم کیا۔ اب وہاں پر دیکھیے علوم کی مختلف نظریں۔ اب علوم تو میں آپ سے عرض کروں، علم تو کئی لوگ پھیلا رہے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میری عادت نہیں سمجھانے کی، میں وہی بات عرض کروں گا حضور سیدی بانی جامعہ نے یہاں آ کر جو کیا۔ آپ کی تعلیمات میں شک نہیں کر سکتے، آپ کے عقیدے میں شک نہیں کر سکتے، بالکل آپ کا عقیدہ برحق ہے، آپ کا علم سچا۔ کیوں؟ حبیب نے حکم دیا ہے جا کر علم عقیدہ پھیلانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کو تو حکم نہیں دیں گے جو خود صحیح عقیدے پر نہ ہو، جس کا علم خود صحیح نہ ہو، جو خود علم میں پٹیاں کھا رہے ایک کا ایک سمجھ رہے ہو، ان کو سمجھانے کیوں بھیجیں گے؟ انہی مصطفیٰ انتخاب کر سکتے ہیں جو خود صحیح سمجھے ہو، امت کو بھی صحیح سمجھا سکتے ہو۔ حبیب کا انتخاب خود بتا رہا ہے، سیدی حضور بانی جامعہ علیہ رحمۃ رضوان اللہ تعالی رضی اللہ عنہ کا علم سچا ہے، آپ کا عقیدہ پاکیزہ حق ہے، حبیب کا انتخاب بتا رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، خدا کو اپنی مرضی سے بھی نہیں، نبیوں کے سردار کے حکم پر جا۔ میں آپ کے مزاج کو نہیں پڑھ سک رہا، آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اب میں جو پڑھوں گا اللہ اس کے رسول کے نام پر پڑھوں گا۔ ہم نے محفل کیوں سجائی نہیں پتا ہے آپ کو، اسی لیے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سوار
نظامآباد حلقہ اسمبلی بالکنڈہ کے ویلپور منڈل میں واقع درج اوقاف عیدگاہ و قبرستان کے اراضی پر ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے قبضے کی کوشش پر ویلپور منڈل میں حالات انتہائی کشیدگی ہو گئے ہیں۔ اس واقعے پر مسلمانوں میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ویلپور منڈل میں واقع درج اوقاف کی 4.5 ایکڑ اراضی پر محیط عیدگاہ اور مسلم قبرستان موجود ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس قیمتی اراضی پر ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے قبضے کی کوشش کی جا رہی۔ رات اس اراضی پر راستے کو ہموار کرنے کے لیے ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے کوشش کی اطلاع پر پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے اس کو ناکام بنا دیا۔ ویلپور منڈل کی عیدگاہ قبرستان پر قبضے کی اطلاع پر حافظ لئی خان صدر جمعیت العلماء نظام آباد نے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو و کمشنر پولیس کالمیشور سے علیحدہ طور پر ایک تحریر یادداشت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی ویلپور منڈل کی جانب سے عیدگاہ و قبرستان سے راستہ فراہم کرنے کی کوششیں لگاتار کئی سالوں سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اراضی کے تمام دستاویزات درج اوقاف ہونے کے باوجود زبردستی ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی راستہ فراہم کرنے اور پلے گراؤنڈ کے نام پر اس اراضی پر ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے، جس سے ویلپور منڈل کے مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ حافظ لئی خان نے ضلع کلکٹر و کمشنر پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کریں۔ آج جمعیت علماء ہند ضلع نظام آباد کی جانب سے نظام آباد ضلع کے کلکٹر صاحب اور پولیس کمشنر صاحب کو اس بات کی تحریری نمائندگی کی گئی کہ جو ویلپور میں گزشتہ کئی برسوں سے وہاں کی عیدگاہ اور قبرستان کی جگہ کو لے کر تنازع چل رہا ہے، اور کل وی ڈی سی جو ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو قبرستان اور عیدگاہ کی جگہ کو پلے گراؤنڈ اور راستے کے لیے استعمال کرنے پر دباؤ بنایا، جس کو گاؤں والوں نے قبول نہیں کرتے ہوئے ویلپور کے مسلمانوں نے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں درخواست دی۔ اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا اور آج پورا گاؤں وہاں پر پولیس کے خلاف مدبھیڑ کر رہا ہے کہ جو جگہ پہ قبضہ لینا چاہ رہے ہیں ان کو پولیس روک رہی ہے۔ وہاں کے ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کو اس بات کا کیا اختیار ہے کہ وہ وقف بورڈ کی جگہ اور عیدگاہ کی جگہ اور قبرستان کی جگہ کو وہ بلڈوزر لگا کے توڑ کر اس جگہ پر وہ پلے گراؤنڈ اور عمومی راستے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس پر وہاں کے مسلمان راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ 4.5 ایکڑ جگہ کے مکمل دستاویزات ہے اور اس کے وقف بورڈ میں ریکارڈ ہے، یہاں تک کہ اس کا AD سروے ہوا اور سب کچھ اس کے دستاویزات ثبوت موجود ہونے کے باوجود اس طرح کی ہراسانی مناسب نہیں ہے۔ میں آج کلکٹر صاحب سے بھی تحریری نمائندگی کیا ہوں اور CP صاحب کو بھی دیے، کمشنر آف پولیس نظام آباد سے ہم فون پر بھی بات کیے اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں CP صاحب کا کہ انہوں نے ہم کو اس بات کا تیقن دیا کہ آپ لوگ بے فکر رہیے، پروٹیکشن کیا جائے گا، کسی کی جانی مالی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم CP صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کلکٹر صاحب کا بھی، کہ وہ کلکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اس جگہ پر جیسی ایز پر ڈاکومنٹ اس جگہ کی حفاظت کے لیے آلریڈی فنڈ سینکشن ہے، اس کو باؤنڈری بنا کر دیا جائے گا، اس لیے وہاں کے مقامی لوگوں کو اور سارے شہر کے لوگوں سے ہم امن بنائے رکھنے کی، پیسفل رکھنے کی اپیل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ GHMC کمشنر رونالڈ روز نے عہدیداروں کو جلگام وینگل راؤ پارک میں شروع کی گئے ترقیاتی کاموں کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ کمشنر جلگام وینگل راؤ نے عہدیداروں کے ساتھ پارک کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے کمشنر نے عہدیداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ پارک کی ترقی کے حصے کے طور پر شروع کیے گئے کاموں کو جنگی بنیادوں پر مکمل کریں۔ پارک میں تالاب کو چیک کیا، عہدیداروں کو تالاب کو خوبصورت بنانے اور تالاب کو صاف کرنے کی بھی ہدایت دی۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مجلس پارٹی کے کارپوریٹروں کے ساتھ GHMC کے سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ، مینٹیننس ڈپارٹمنٹ، الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور HMW SNSB مینٹیننس اور پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کے افسران کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کے دوران MLA کے ساتھ مجلس پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکن موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان کے تمام ڈپارٹمنٹ GHMC مینٹیننس، GHMC پروجیکٹ، واٹر ہاؤس پروجیکٹ، واٹر ہاؤس مینٹیننس
GM3 GM4 सैनिटेशन डॉक्टर अनुराधा उनके तमाम SS के साथ में, और ख़ास तौर से जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उन तमाम कामों के फरोख्ती डाली गई, और इलेक्शन के दरमियान में जो दौरों के दरमियान में जो प्रॉब्लम थे उन तमाम कामों के लिए, चाहे वो वाटर्स के हो या प्रोजेक्ट के हो या मेंटेनेंस के हो, GHMC के हो या वाटर्स के हो या सैनिटेशन का हो या स्ट्रीट लाइट का मामला हो या मिनीमास्ट का मामला हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का था, तमाम चीज़ों को नोट किया गया था। आज रिव्यू मीटिंग की गई और कई करीब 80 करोड़ की लागत से कई काम मंजूर है, उन तमाम कामों को चालू करने के लिए बताया गया। और जो काफ़ी पेंडिंग है काम, 1 साल से जो टेंडर होने के बाद भी कंट्रैक्टर नहीं कर रहे, उन तमाम कंट्रैक्टरों के ऊपर भी एक्शन लेने के लिए बताया गया। अगर काम ना करने पर काम को एजेंसी को कैंसिल कर रिकॉल लगाने के लिए बताया गया। और उसके अंदर वाटर वर्क्स के भी कई काम रुके हुए थे, जो प्रोजेक्ट के जो 297 करोड़ की लागत से जो काम चल रहा है वो जगह के भी कामों को रोक दिया गया था। आज इंशाल्लाह उस मीटिंग के अंदर रिव्यू किया गया, और ख़ास तौर से मोहम्मद लेन का जो मेन रोड का मामला है, चाहे वो टोली चौकी का मामला हो मेन रोड का, जहाँ पर भी वाटर्स वाले काम कर रहे बड़े प्रोजेक्ट वाले, उन तमाम कामों के लिए भी, और जहाँ तक हो सकता है पाइपलाइन डालने के बाद उन तमाम कामों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताया गया। और CGM ने तयखुन दिया कि जल्द से जल्द उन तमाम कामों को मुकम्मल करने का तयखुन दिया। और कहीं सीवरेज लाइन के चाहे कोई भी बस्ती हो, कोई भी कॉलोनी हो, उन तमाम कामों की भी नुमाइंदगी की गई, बताया गया। और 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह उन तमाम कामों को जल्द से जल्द चालू करने का तयखुन दिया। और ख़ास तौर से जो वाटर प्रोजेक्ट के जो काम है 297 करोड़ के, चाहे वो जियागुड़ा हल्का हो या डिवीज़न हो या कारवान हो या गुड्डी मलकापुर हो या टोली चौकी, नारायणगढ़, रंगरौज, गोलकुंडा, इन तमाम बल्दी इलाकों के अंदर जो भी सीवरेज लाइन के जहाँ पर भी ज़रूरत है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द प्रोजेक्ट के ज़रिए काम को मुकम्मल करने का तयखुन दिया गया। और ख़ास तौर से और कई नए कामों का भी प्रपोजल दिया गया, CC रोड्स का, दीगर कामों का भी प्रपोजल दिया गया। इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर इंशाल्लाह उन तमाम कामों को जल्द से जल्द सेंक्शन किया जाएगा। और पिछले 8 दिन से फिर GHMC स्ट्रीट लाइट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ESL वाले, वो 8-10 दिन से फिर स्ट्राइक कर रहे हैं। इलेक्शन कोर्ट से पहले भी स्ट्राइक कर रहे 2 महीने तक, फिर वो आज 8 दिन से फिर स्ट्राइक कर रहे हैं। काफ़ी जगह पर अंधेरा है, काफ़ी जगह पर मिनीमास बंद है, काफ़ी जगह पर मॉडल लाइट, कई जगह पर कन्वेंशनल लाइटिंग बंद है। आज उनके EE को भी बुलाकर बात किया गया, और इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से भी बात कर जहाँ पर भी स्ट्राइक कर रहे कंट्रैक्टर्स, उन तमाम के ताल्लुक से बताया जाएगा। आज की मीटिंग के अंदर बल्दी हल्के कारवान के तमाम कारपोरेटर्स और एक्टिव वर्कर, मुहिबान मजलिस, जिम्मेदार मजलिस आज की मीटिंग में शामिल थे। शुक्रिया, खुदा। विकाराबाद के MLA गड्डम प्रसाद कुमार ने तेलंगाना खानसाज असेंबली के स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर CM रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, खानसाज अमूर के वजीर D श्रीधर बाबू, दीगर काबीनी बुजुर्ग, साबिक वजीर KGR और दीगर खानसाज मौजूद थे। चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर CPRA अयोध्या रेड्डी ने CM रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और गुलदस्ता देकर शुक्रिया अदा किया। अयोध्या रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने उन पर एतमाद किया और उन्हें चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में बतौर CPR मुकर्रर किया। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने सिखो, माजरा और लोथरी मोरंडा के सरकारी स्कूलों का दौरा किया, असातिज़ा और तलबा से बातचीत की और उनकी शिकायत का इज़ाला किया। वज़ीर आला ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि हमारे सरकारी स्कूलों की पूरी तस्वीर बदल रही, बच्चे और असातिज़ा दोनों ही पढ़ाई और पढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। इस किस्म के दौरे मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। अगली बार पंजाब के किसी और कोने में मिलेंगे। इलियास शरफुद्दीन ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने रोजे की बरकतों और फायदों पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए देखते हैं इलियास शरफुद्दीन ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर दुनिया भर पर अमन सलाम ते शांति और नती नाजिल करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कई दरुस दे चुका हूँ रोजे के फायदे पर, और अल्लाह के रहमो करम से मैं कोशिश भी करता हूँ खाने पे कंट्रोल रखूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रोजे की तरफ माइल रहूँ। लेकिन वल्लाह बता रहा हूँ, मैं आज हमारे एक भाई के साथ मैं बैठा हूँ जिद्दा में एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में, और अल्लाह जानता इतने फायदे एक गैर मुस्लिम ने बता दिए हैं, हमारे भाई ने उनकी वीडियो सुने हैं रोजे के, इतने फायदे
शुगर लेवल कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, आपके पूरे ऑर्गन्स कैसा अच्छे रिफ्रेश हो जाते, कैसा आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता, आपके ग्रोथ सेल्स कैसा, आपके ब्रेन सेल्स कैसा रीग्रो होना शुरू हो जाते, कैसा आपकी दवाएं छूट जाती, कैसा माशाल्लाह जिस्म में एक्टिवनेस आ जाती। इतने फायदे, मैं हमारे वो भाई को देख रहा हूँ 3 महीने से उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्टिव हो गए अल्लाह की फजल से, वेट कम हो गया एंड ही इज लिटरली एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। ख्याल ये रखिए कि देखिए मैं भी रोजे रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या होता इफ्तार में दबा के, फिर इशा के बाद फिर दबा के खाने, फिर 12 बजे तक कुछ तो भी ये वो मिठे विठे, फिर सहरी दबा के, तो पूरा डाइल्यूट कर देता पूरे मसले को। ऐसा मत होने दीजिए, लिमिटेड इफ्तार, लिमिटेड सहरी, कंट्रोल्ड, तो फिर बेनिफिट्स दिख कर आएंगे। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक महीने में 3 अय्याम बैत के रोजे और मंडे थर्सडे रोजे रहने की। अल्लाह की इबादत नबी की इताअत में कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम। एमएलए वसुंता वेंकटा कृष्णा प्रसाद सुबह 10 बजे मेलावरम मंडल के चंद्राला गांव में नौ तामीर शुदा सेक्रेटरिएट और रैतु भरोसा केंद्र की इमारतों का इफ्तिताह किया और हुकूमत की तरफ से गड़पा गड़पा प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए तरक्याती कामों के बारे में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। बादजा मकामी अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारा, नामजद ओहदों पर मौजूद कायदीन, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायदीन, सेक्रेटरिएट कन्वेनर, वाईसीपी कारकुनान, खैर ख्वाह और वाईसीपी के अरकान खानदान सभी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। निरंजन कांग्रेस लीडर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क में अदम तहफ्फुज है। ये हकीकत के 2 हमलावरों ने पार्लियामेंट में घुसकर हमला करने की कोशिश की, ये जाहिर करता है कि सिक्योरिटी की नाकामी कितनी बुरी है। मुल्क में मोदी राज का अदम इस्तेहकाम सामने आ गया है। अगर पार्लियामेंट में इतनी सख्त सिक्योरिटी में यह हाल है तो मुल्क में क्या सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस मामले में जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस एमएलए गडम प्रसाद कुमार ने असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, वुजरा सीतक्का, तुमला नागेश्वर राव, दोडेला श्रीधर बाबू, बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर और एमआईएम, सीपीआई, कांग्रेस एमएलए व दीगर ने नामजदगी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही सामने आई है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ऐवान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब अचानक 2 नौजवान सामाइन गैलरी से ऐवान में दाखिल हो गए। छलांग लगाते ही दोनों नौजवान आगे बढ़ने लगे। खबरसा एजेंसी के मुताबिक इस वक्त ऐवान में मौजूद अरकान पार्लियामेंट ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपने जूते से कुछ निकालने की कोशिश की। कई अरकान पार्लियामेंट ने यह भी बताया कि इस वक्त ऐवान के अंदर पीला धुआं भी नजर आया। अरकान पार्लियामेंट ने दोनों को पकड़कर सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिया। ऐवान की कार्रवाई की सदारत करने वाले चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल ने फौरी तौर पर लोकसभा की कार्रवाई रोककर उसे 2 बजे तक मुलतवी कर दिया था। साइबराबाद के साबिक कमिश्नर स्टीफन रविंद्र आईपीएस ने कहा है कि जैसा कि मैं अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहा हूं, आपकी रहनुमाई करना एक बहुत बड़ा एजाज रहा और साइबराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर खिदमत अंजाम देना एक बहुत बड़ा एजाज रहा। एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसकी परवरिश पुलिस खानदान और पुलिस लाइंस में हुई है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपके साथ कुछ करूं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आजिज़ी को हमारे अमाल के पीछे मुहर्रिक के तौर पर रखें और शहरियों के लिए हमारे खिदमत में गैर मुतज़लज़िल रहें। मैं अपने नए सीपी श्री अविनाश मोहंती को हर तरह से ताउन देने की दरख्वास्त करता हूँ। ఇక్కడ మన సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఇక్కడ చాలా కీలకమైన ఇండస్ట్రీస్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. హ్యూజ్ పాపులేషన్ మన ఏరియాలో ఉంటుంది, వస్తుంటుంది. రోజు ఆఫీస్ వర్క్కి వస్తుంటారు, పోతుంటారు. సో మన దగ్గర ఉన్న ప్రయారిటీ ఈజ్ టు have a safe and secure environment for everybody. As police, my responsibility will be to uphold the rule of law, absolute rule of law. మన చట్టబద్ధంగా పనిచేయాలి, అందరితో ఫేర్నెస్ పాటించాలి. మన whoever comes to us with a problem, అందరితో ఫేర్నెస్ పాటించాలి. మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్, పోలీస్ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్, మ్యాన్ పవర్ కానీ కావచ్చు, మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ అవ్వచ్చు, వెహికల్స్, ఇవన్నీ ఫుల్ డిప్లాయ్ చేసి ఫుల్ పబ్లిక్కి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సేఫ్టీ మన ఏరియాలో ఇవ్వడం
అది మన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ. ఇప్పుడు కొత్త కొన్ని క్రైమ్స్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ కొత్త కూడా కాదు, చాలా రోజుల నుంచి సైబర్ క్రైమ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంది. అది యాక్చువల్లీ మన క్రైమ్లో చూస్తే చాలా పెద్ద భాగంగా అదే ఒక టైం అండ్ ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది. సో అది న్యాచురల్గా దట్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ. తర్వాత అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, మన దగ్గర చాలా ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్, మనం చెప్పిన వైట్ కాలర్ క్రైమ్స్ అవన్నీ ఇన్వెస్టిగేట్ అవుతాయి. సో అది చాలా ఫేర్గా, నిష్పక్షంగా, అది విత్ ప్రొఫెషనల్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలని అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. సైబరాబాద్లో పబ్లిక్కి చాలా ఎఫెక్ట్ చేసే ఇంకో ఏరియా ఇస్ ట్రాఫిక్. సో మా దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ బెస్ట్ ఆఫ్ అబిలిటీకి డిప్లాయ్ చేస్తాం. దానికి ఏమైనా సొల్యూషన్స్ విల్ ట్రై టు టేక్. డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్తో వాళ్ళకి కోఆర్డినేషన్ పెట్టి విల్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దట్ ఇష్యూ ఆల్సో. సో దీస్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ రెగ్యులర్ క్రైమ్ కూడా ఇక్కడ చాలా ఏరియాస్, బికాజ్ అవుట్స్కర్ట్స్లో చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని రెగ్యులర్ క్రైమ్. సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ మీరు చెప్పారు, చాలా ఇష్యూస్ రేస్ చేశారు. సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ మీద మేము ఖచ్చితంగా నిఘా పెడతాం. దాని మీద ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయవచ్చు అది విల్ వర్క్. कॉमरेड नीलम राजशेखर रेड्डी के इंतकाल के मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के एमएलए कोनाननी सांबशिवराव, एसटीयू के रियासती सदर सेक्रेटरी सदानंद गौड़, पार्वत रेड्डी, एआईएसएफ तेलंगाना के रियासती सदर कासिर रेड्डी, मणिकांता रेड्डी, एआईटीयूसी कायदीन सबुर राजामौली ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया. सीपीआई स्टेट राजशेखर रेड्डी के दफ्तर में नीलम राजशेखर रेड्डी, बोया श्री रामुलु, अशोक मूर्ति व दीगर ने शिरकत की. निजामाबाद के बल्दी डिवीजन नंबर 58 धारू गली नजद मस्जिद नूर के पास गुज़िश्ता 4 महीनों से समबरसेल पंप के नाकारा हो जाने से हो रही पानी की सरबराही की परेशानियों के पेश नजर मस्जिद नूर कमेटी ने मुतल्लिका कॉरपोरेटर एम ए खुद्दूस को तवज्जो मबजूल करवाई, जिस पर कॉरपोरेटर एम ए खुद्दूस ने कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद वंडा मकरदाना को सबमर्सिबल पंप नाकारा हो जाने और बोरवेल के अंदर वहां पर सेबल बरकी मोटर गिर जाने के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए फौरी इसको काम को अंजाम देने के लिए मुयस्सर वो कामयाब नुमाइंदगी की, जिस पर कमिश्नर बल्दिया वंडा मुकरानत ने वाटर वर्क्स ओहदेदारों को इस सबमर्सिबल पंप को दुरुस्त करने और पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी है और इस पर पंप बोरवेल की मशीनों के जरिए फ्लशिंग की गई और जदीद मोटर पंप नस्ब करते हुए सेबल बोरवेल को बेहतर बनाया गया है. इस मौके पर बल्दी डिवीजन नंबर 58 कॉरपोरेटर में खुद्दूस ने बताया कि उनके बल्दी डिवीजन में जहां कहीं भी बल्दी मसाइल व अवामी मसाइल दरपेश हों, फौरी उन मसाइल की यकसोई के लिए अमली इक़दामात करते चले आ रहे हैं. हैदराबाद के नए मुकर्रर करदा पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.